पंचायत जैसे शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन लगता है. There are the actors who are bringing these characters to life, the writers who are writing these amazing scripts, and the directors जो बढ़िया निर्देशन कर रहे हैं. लेकिन ये सब कुछ फीका पड़ जाए अगर म्यूजिक सही ना हो. So today I am speaking to the music composer of Panchayat, Anurag Saikia, at his studio Contrail to find out how he spread the magic of his music across all the seasons of Panchayat. So let's go talk to Anurag. Follow me. ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे अकेली है कभी शायद वो तो पूरा विनोद एंड नीना जी का रिलेशन ही कुछ अलग हो जाएगा. आप लोगों ने सुना ही होगा कि पोस्ट पे सामान लेंगे ना. ए राजा जी, ए करे तारा हल. Hi Anurag, welcome to the comment section. Thank you. We are sitting in your very high-tech, comfortable studio called Contrail. So congratulations, आपने हमें बताया कि the studio is very new Yes. and it looks spanking new Thank and you. really good. So Anurag, इस segment में हम आपसे specifically पंचायत के बारे में बात करना चाहते थे. I don't think anybody will argue in the last 5 years it's probably one of the most, if not the most successful web series that has come in the Indian OTT space. 2020 was the season 1. Yeah. तो season 4 अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ and it's doing really well. Yeah. तो हमें ओरिजिन्स बताइए आप सबसे पहले पंचायत के साथ. How were you associated? Who came up with the idea? Do you remember anything? Yeah, actually, I think it is the pre-COVID thing Right. when I got involved with TVF from this series called Good Luck. तो Good Luck के टाइम में there is this मेरा दोस्त, he is the editor, his name is Amit Kulkarni. So I think if I am not wrong, Amit told me about Panchayat for the first time. जब हम लोग Good Luck के बाद आई थिंक तो ही told me कि ऐसा एक सीरीज बन रहा है जो आपका बहुत आपके स्पेस का है. At that time I don't know what was my space, but of course उन्होंने बताया कि आपको बहुत अच्छा लगेगा. That's how I started meeting Deepak sir. I met I think चंदन भी आया था एक दो बार. Okay. तो वैसे ही we started Panchayat and now it's It's Yeah. for the rest is history, as rest they is say. history. Yeah. Yeah. Was there any apprehension? क्योंकि even till 2020, village stories were something that were not very common. We didn't see that very Yeah. much on our screens. Even TVF was making mostly urban stories about youngsters. When the setting was told to you कि एक गांव में set है, was there any? Do you want to do a village story? Was there any preconceived? No, ऐसा नहीं था because at that time ना I was also very new in the independent sector. Right. तो I was assisting other composer. तो वो ही एक फेज था जब मैं मीन्स असिस्ट म्यूजिक Right. से म्यूजिक डायरेक्टर से मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर का मेरा एक जर्नी शुरू हो रहा था. Right. तो एनीथिंग आई वाज गेटिंग आई वाज लाइक इट वाज अ ब्लेसिंग्स फॉर मी. Right. तो एंड मैंने वो कभी नहीं सोचा कि ये विलेज का स्टोरी है, ऐसा है वैसा है. ओब्वियसली एक तो बात है कि जब टीवीएफ कुछ लेके आता है वो सेंसिबल ही होता है. Right. बिकॉज उससे पहले मैंने गुल्लक किया था. गुल्लक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज गुल्लक का हर कैरेक्टर देख के लगता है ये तो मैं हूँ या ये मैं किसी को मेरे घर के आसपास के कोई है. बट ओब्वियसली जब पंचायत का कॉन्सेप्ट मुझे बताया था तो मेरे दिमाग में कुछ था कि ऐसा एक विलेज होएगा, एक ट्री होएगा, पेड़ होएगा जिसके सराउंडिंग में 5 ऐसे दाढ़ी वाला कोई 5-6 लोग बैठ के बोलेगा कि नहीं यार आज से ये बंद, कल तुम आना ये. तो जब मुझे पहली बार के लिए मैंने जब विजुअल देखा कि प्रॉपर एक ऑफिस है एंड वहाँ पे लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं, आई वाज लाइक वाओ, this is new India and I was very proud to be associate and पंचायत से मैं अलग एक दुनिया मुझे एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिला. Right. या बट वो कभी नहीं था कि मैं ऐसा विलेज का स्टोरी ये कहानी इतना बेहतरीन था. In one of the interviews आपने mention किया था it took you around some 2 months to nail the sound and tone of the show. Yeah. Can you take us back as to what was there a route that you kept going back to of thoughts? नहीं, हम लोग दीपक सर ने मुझे आके बोला कि देखो पंचायत का जब हम लोग सीटिंग भी कर रहे थे तो मुझे पता है कि वैसे भी कोई भी ऐसा रूरल स्टोरी होता है तो
म्यूजिक के लिए हम लोग के डायरेक्टली जो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है दैट इज वेरी तबला Right, हारमोनियम exactly. ढोलक हाँ, बेस ना हाँ, means जो अपना रूरल इंस्ट्रूमेंट है Right. उसको लेके। तो दीपक सर ने बोला कि लेट्स डू समथिंग बियॉन्ड दिस, Okay. ये नहीं करते। Okay. तो आपको जब बोलते हैं कि एक नहीं करते, देयर इज लाइक 100 मोर एवेन्यूज दैट यू कैन लाइक एक्सप्लोर, राइट। एंड बिकॉज मैं खुद ही एक म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अलग अलग मैंने जॉनरास पढ़ा है या सुना है या देखा है या सीखा है, जो भी है। तो वो ढूंढने के लिए कि कौन सी रूट में जाए, कि शैल वी डू समथिंग ऑर्केस्ट्रल, शैल वी डू समथिंग इलेक्ट्रॉनिक, शैल वी डू समथिंग लाइक जैज, और कुछ ब्लूज करे या कुछ ऐसा करे, एफ्रो टाइप का कुछ करे या कुछ यूरोपियन बेस कुछ करे या कुछ। तो वो क्योंकि हर म्यूजिक का अलग एक स्वाद है, Right. बट इट ऑल्सो हैव टू गो विद द विजुअल्स, राइट। Right. मीन्स ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कहानी है अंधेरी की और आपका म्यूजिक है एम्स्टरडम ना। मीन्स वो कनेक्शन कैसे लेके आए वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, कि म्यूजिक भी आपका एम्स्टरडम का हो, कहानी भी अंधेरी का हो, और लोग मीन्स आपका कोई आमगुरी में बैठ के भी वो बढ़िया से देख रहे हैं। हाँ, सो तीनों चीज को ना कनेक्ट करने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगा। Right. आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दैट टाइम, Uh-huh. and the result is like unbelievable, especially in terms of Soto तो इतना popular है, but the love that we are getting for the music as well, it's like incredible. Right. How involved are the director and the writer at any stage, or like do they give you references? The best thing about I tell this every time, you're working with TVF is that there's only the director who comes to your studio. Yeah. He will say this is good or this is not working. उसके बाद कोई नहीं रहता है, there is no any other person की कोई आके दूसरे लोग आके सुनेगा, they will give their feedback. Yeah. So the process is very easy. And with Deepak Mishra sir, I think he's so particular about what he wants, and बहुत ज़्यादा नहीं बोलते वो, और जब भी एक पॉइंट बोलते हैं वो इतना करेक्ट होता है, मीन्स कभी कभी लगता है कि, और द वे ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग ऑल्सो ना, इज लाइक वेरी मीन्स अभी मैं क्या ही बोलूँ कैमरा के सामने, बट इट्स वेरी अनरियल, Right. लेकिन जो बोलता है इट्स वेरी टू द पॉइंट। Got it. एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो आज जो टाइटल ट्रैक के बारे में हम लोग सारे बात कर रहे हैं, इट हैज बिकम सो आइकॉनिक, रियली आई फील लकी दैट वाज अप्रूव्ड एंड सिलेक्टेड बाय दीपक सर। Okay. या जब सारे लोग वाज लाइक नहीं कुछ अलग बनाता है, कुछ लिरिकल कुछ बनाता है या कुछ ये करते हैं, ही वाज द पर्सन, नो यही चाहिए मुझे। Right. Do you remember how many variations there were, or how many options you came up with for the title track? हार्डली 1 or 2। Okay. या बिकॉज तब तक टाइटल ट्रैक हम लोग का एकदम मिड वे में बना था, Right. हाँ. बिकॉज तब तक हम लोग को मालूम नहीं था कि ग्राफिकल होएगा, कि कुछ शूट करेगा, कि क्या होएगा, एंड तब तक हम लोग का दुनिया बन गया था। Right. तो उस दुनिया से हम लोग जो सबसे अच्छा चीज़ है वो लेके हम लोगों ने टाइटल ट्रैक बनाया था। Got it. एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन द एडवर्टाइजिंग Right. सेक्टर, तो एडवर्टाइजिंग में जैसे होता है ना कि 10 सेकंड में यू हैव टू डू समथिंग और यू हैव टू क्रिएट समथिंग जो लोगों को याद रह जाए ना, वो सब एक्सपीरियंस भी शायद काम दिया। Okay. तो बिकॉज अभी जैसे लोग वो जब म्यूजिक कहीं पे भी आते थे ना 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 ना, तो यू कैन फील दैट विलेज, यू कैन फील रघुवीर सर या जीतू या फैजल सर, नीना जी। तो या So 4 seasons have gone through for Yeah. Panchayat, Yeah. and I feel with each season the intensity of the show grows a little bit. Yeah. Season 1 was introducing the characters and the environment. Yeah. Season 2 the world opened up a little bit. So something very tragic happened at the end of season 2. Yeah. Season 3 and 4 have been political in nature, right? Some Yeah. very life changing things are happening in the lives of these characters. Yeah. तो आप do you feel from season 1 to 4 आपने साउंड्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, म्यूजिक के साथ 100%, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया? Yeah, I mean same themes only if you have seen. हाँ. Means पंचायत का मेन टाइटल ट्रैक ही सीजन 2-3 में रॉक वर्जन बन जाता है, कुछ अलग बन जाता है। हाँ. या देखो सोल सेम ही है, हाँ. बस जैसे आपने एकदम करेक्टली बोला, द साउंड कीप्स ऑन चेंजिंग। Right. और लाइक समवन हैज राइटली मेंशन कि जैसे सीजन वाज वेरी सिंपल, राइट? Right. लेकिन आप किसी इन रियल लाइफ हो, अगर किसी के साथ आप 6 महीने भी रह जाते हो ना, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है लाइफ में। पूरा दुनिया ऐसा
इतना लवी दवी वाला दुनिया नहीं है हम लोग का, Right, कहीं पे भी। हाँ। So, वो आप शहर में हो सकते हैं, गांव में भी हो सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगा ही। एंड दैट्स हाउ पंचायत इज क्रिएटेड एंड दैट्स व्हाई इट्स सो रियल, एंड शायद इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो म्यूजिक में भी वो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा है, अलग अलग, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग एल्स। तो या Can you give an example of experimentation? A specific example? जैसे टाइटल ट्रैक का ही आप अगर देखो, Right. आई थिंक दिस इज अमोंग वेरी फ्यू सीरीज जिसका टाइटल ट्रैक का ही मीन्स देयर विल बी लाइक एटलीस्ट 15 to 20 वेरिएशन। Right. Right. कभी वो कॉमेडी होता है, कभी दुख में होता है, कभी अभी इस बार जैसे सावधानी हाथी में भी वही यूज द टाइटल ट्रैक का मिलते Right. Yeah. तो रॉक वर्जन में अलग है। हाँ. If you have heard the end music of season 4, Yeah. so that is also something derived from the main title track only. कभी कभी एक इलेक्ट्रिक गिटार के साथ आ जाता है जो पहले शायद एक दोतारा और यूकेलेले में बजा था या बैंजो में बजा था। सो या ये मौका तो मिल रहा है बहुत। Okay. So Anurag, there's a very famous Western music composer in Hollywood called John Williams, Yeah, right? I'm yeah. sure you have Yeah. followed his work. And if you see the most classic soundtracks that he has given, like Star Wars or Indiana Jones, Yeah. he has this thing where each character has their own theme, Yeah. right? Was there something like that in Panchayat कि आपको अभिषेक के लिए एक थीम सोचा, आपने प्रधान जी के लिए एक थीम सोचा, बनरक्कस के लिए एक थीम सोचा, or was it more specific to the conditions and the places in the story? नहीं, हम लोगों ने कैरेक्टर के लिए कुछ कुछ थीम बनाया था, Okay. but it was more into the panchayat. Mainly the music was for the panchayat. क्या बोलते हैं, for the premise. Got it. Yeah. तो जब कैरेक्टर बढ़ता रहा, then we started introducing अलग अलग कैरेक्टर म्यूजिक। Okay. जैसे आई डोंट थिंक जीतू के लिए कुछ भी कैरेक्टर म्यूजिक है, या रिंकी के लिए कुछ भी कैरेक्टर म्यूजिक, देयर इज नो कैरेक्टर म्यूजिक फॉर देम, Correct. Yeah. बट देयर इज ए थीम म्यूजिक फॉर देयर रोमांस। Got it. जैसे द सॉन्ग पहेली वी डिड, वहां पे व्हिसल का साउंड है, दैट म्यूजिक दैट फॉर देयर रोमांस। Yeah. रघुवीर सर के लिए कोई भी ऐसा बनाया नहीं था, लेकिन देयर वाज ए म्यूजिक फॉर द फर्स्ट सीन जहाँ पे वो जीतू को इंट्रोड्यूस करवाते थे विलेज में, कि ये मेरा गांव है, यहाँ पे अपना जमीन है। तो देयर इज अ वेरी सीजन 4 में जाके फाइनली रघुवीर सर के लिए एक थीम म्यूजिक हम लोगों ने बनाया, Okay. बट फ्रॉम द डे 1 ओनली बनराकस के लिए एक थीम था। अच्छा. या बनराकस के लिए एक थीम था। भूता पेड़ के जो एपिसोड था आई थिंक सीजन 1 में, Yeah. तो वहाँ पे एक थीम था। जैसे नीना जी के लिए कोई थीम नहीं है, बट नीना जी और प्रधान जी जब बात करते हैं उन लोग के लिए एक थीम है। Okay. तो वैसे वैसे हम लोगों ने कुछ कुछ बनाया था। ठीक है. और कुछ कुछ थीम ना, या कुछ कुछ म्यूजिक वैसे भी एक लोगों के साथ जुड़ गए, और वो ना कंपोजर या डायरेक्टर ने नहीं, ऑडियंस ने जुड़ा दिया है। जैसे खाली खाली सा, जैसे हम लोगों ने वो सिचुएशन के लिए बनाया था, लेकिन अभी कभी भी खाली खाली सा बजाते हैं ना, वो प्रहलाद शाह का फेस आपके सामने आ जाए, या इनफैक्ट आसमारू था। तो हाँ, ऐसा इट्स लाइक ए मिड वे। कोई कोई कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने बनाया था, और कोई कोई के लिए हम लोगों ने नहीं बनाया था, सिचुएशन के लिए बनाया था। Correct. Any reason बनरक्कस के लिए आपने एक थीम ऑलरेडी सोचा, मतलब he got his own theme? या बिकॉज वो जरूरी भी था। हाँ. देयर वर लाइक बिट ऑफ कमर्शियल एंगल आल्सो, Okay. कि एक कैरेक्टर अगर आ जाते हैं, हम लोग थीम कब बनाते हैं, मैं एज ए कंपोजर कब बनाता हूँ कि अगर वो थीम, वो कैरेक्टर ना भी रहे, उसका म्यूजिक कहीं पे मैं बजा भी दूँ ना, द कैरेक्टर हैज टू बी फेल्ट। Correct. तो इसीलिए बनराकस के लिए बनाया था। Okay. और हाँ, और वो थीम भी नहीं, देयर इज जस्ट ए साउंड ऑफ ए फ्लूट, Right. ऐसा करके कुछ आता है। Yeah. सो बिकॉज बनराकस ऐसा एक कैरेक्टर है ना, इट्स नॉट डायरेक्टली बैड ऑल्सो फॉर मी, he's not neither good also, right? He's just doing what he is feeling right. Right. Yeah, तो डायरेक्ट अगर मैं कुछ एक विलेन जैसा थीम बता दूँ, that will also not ये जैसे सीजन 4 में हम लोगों ने उस समय बात कर रहा था कि लोग कमेंट दे रहे हैं कि maturity is when you realize actually बनराकस was not wrong. Right. तो वैसा टाइप का है। तो बनराकस हो या
I think we made a theme for season 3 का that it is a beautiful episode about the old lady जहाँ पे उनको घर मिला था. Right. Yeah. तो कोई कोई कभी कभी ना कहानी बता देते कि इस कैरेक्टर के लिए एक थीम म्यूजिक होना चाहिए. Okay. Yeah. It's very interesting you said that because हमने रघुवीर जी के साथ इंटरव्यू किया, हमने चंदन के साथ इंटरव्यू किया है, and both of them said the exact same thing that they don't see the characters in this show as good guys or bad guys. Yeah. They have their own good things also and bad things Yeah. also. So actually that was my next question. Ki, how do you balance out the gray or the range of emotions that you have? Because there are times where Jeetu's character, even though he doesn't mean to be rude, but वो कभी-कभी frustrate होकर चीज़ें बोल देता है गाँव वालों को, which they don't like. Yeah. At the same time, in romantic scenes, you have to feel his romance also. Yeah. So this is a more of a artistic question. How do you convey that through the music? If you can explain it. I think that's my job. Right. So sometimes it also comes from the director, from Right. the creator. हाँ. And Panchayat is so difficult. जैसे the character like Jeetu हो या फैजल सर हो या रघुवीर सर हो, नीना जी हो, they are mainly they are like the hero of the show, right? But उन लोगों ने भी बहुत उन लोग का कैरेक्टर से कुछ कुछ गलतियां क्या है. जैसे सीजन 4 में बताते हैं ना कि हम लोग अगर काम करते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता. तो एज ए म्यूजिक इट्स बिकम वेरी इजियर टू मेक ए कैरेक्टर विलेन और क्रिएट ए कैरेक्टर विलेन और ए हीरो. जैसे हम लोग कभी कभी इंस्टाग्राम में भी देखते हैं खराब सा म्यूजिक अगर लगा देते हैं कहीं पे तो दैट कैरेक्टर टर्न्स टू समथिंग एल्स. और उसमें अगर आप एकदम रोमांटिक सा कुछ लगा देते तो उसका पूरा नजरिया ही चेंज हो गया. तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग म्यूजिक ऑल्सो कि कैसे आप खेल रहे हो. एंड जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग करते हैं. एंड बहुत जगह पे हम लोगों ने इसलिए म्यूजिक भी नहीं किया क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए. जैसे आई थिंक सीजन 3 में देयर इज द फाइट सीक्वेंस, राइट? फुल फाइट हो रहा है ये सब. जब प्रधान जी में गोली लग जाता है उसके बाद आगे जीतू आके थप्पड़ मारते हैं, फिर फुल फाइट होते हैं. हम लोगों ने कुछ म्यूजिक किया था तो म्यूजिक जब बना देते हैं तो लगता है कि वो सीरियस है, लेकिन सीरियस तो नहीं. मीन्स कहीं पे भी तावा पे हाथ लग रहा है, ये वो सब हो रहा है, कॉमेडी है वो. लेकिन वो लोग तो सीरियसली लग रहे हैं, मीन्स लड़ रहा है, मीन्स सीरियसली मार रहा है, मीन्स ऐसा तो नहीं वो लोग कॉमेडी कर रहे हैं. तो कॉमेडी म्यूजिक करते हैं तो लगता है तो कॉमेडी लग रहा है, तो सीरियस करते हो तो लगता है सीरियस. तो लास्ट में हम लोग डिसाइड किया नहीं रखते म्यूजिक, लेट ऑडियंस डिसाइड. एंड देन द साउंड डिजाइनिंग, साउंड इफेक्ट्स बिकेम द म्यूजिक ऑफ दैट होल पोर्शन, जो सुदीप्तो दा और इन लोगों ने इतना बढ़िया से किया है. तो हाँ, दोस आर द थिंग्स. Whose call is it to see के इस सीन में म्यूजिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? It's a collective thing, but mainly the director. Okay. Yeah, mainly the director. Right. Miss Panchayat is a series जहाँ पे everyone is very involved. जैसे मैंने अमित के बारे में बोला, अमित कुलकर्णी. Yeah. तो there are many instances जहाँ पे हम लोग को अमित को खुश करना पड़ रहा था. वो आके बोल रहा है कि भाई this is not working. Right. Yeah. तो but yeah. It's a collective decision again. Okay. But again, the captain of the ship is the director. Yeah, the director. Right. Are there a particular set of instruments that you have in your kitty when it comes to Panchayat, where you're like all the strokes instrument, okay, all the strings and the strokes instrument, like guitar ho, ukulele ho. In season 1, we explored so many instruments. Means we recorded that instrument called kora. Okay. Yeah, by a Belgium artist. Okay. He is from Belgium. Vincent was his name. Is his name? Sorry. तो उन्होंने बजाया था वो. फिर गिटार ले ले, फिर रेजोनेटर. There are lots of folk instruments from Northeast, like dotara, duitara. The drum section like nagara, khol, dhol. Yeah. Many instruments. I wanted to come to this. So India is such a vast and diverse country, right? Yeah. And if you take Panchayat's story, Phulera is like an amalgamation of various North Indian towns, Yeah. right? You're not specifically from North India. You're from another part of India. You come from the Northeast. Yeah. And yet, so basically I'm trying to understand the creative process of how I'm putting as a substitute of all composers across India. How do you
how does it click? Okay, this is working, even though you may not have lived in that atmosphere. आप शायद नॉर्थ इंडिया के गांव में बड़े नहीं हुए होंगे, करेक्ट, लेकिन फिर भी एक क्रिएटिव आवाज अंदर से आती होगी जो बोलता होगा कि हाँ ये बैठ रहा है इस पे. How does that work? दो चीजें. इफ यू आस्क मी अबाउट सीरीज लाइक पंचायत, Yeah. पंचायत इज, आई डोंट थिंक इट्स अ स्टोरी अबाउट नॉर्थ इंडिया और समथिंग लाइक, फॉर मी Yeah, yeah. ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड इन ए सर्टेन विलेज और ऑफ ए सर्टेन स्टेट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. क्योंकि वो कहानी ना मेरे गांव का भी है. मैं सपोज मैं उड़ीसा से हूँ या मैं बेंगलोर से हूँ या कहीं से भी हूँ, ये सब होते हैं वहाँ पे. और ये सब लोग हम लोग देखते हैं. अभी प्यार कहाँ नहीं होते हैं, राइट? हर जगह पे होते हैं. Right. पंचायत का ऑफिस हर जगह में है, इंडिया में स्पेशली, Yeah, yeah, राइट? तो जो छोटा मोटा पॉलिटिक्स होता है वो होता है. जो आपका जो ये हाई मैसेज देता है बियर पीने के लिए, वो हर जगह में होता है Yeah. ना. तो पंचायत इज सेपरेट. Right. अदर जो मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, तो कभी कभी मैं वहाँ पे कभी कभी जाता हूँ, उस जगह पे जाके मैं बैठता हूँ, मैं रहता हूँ वहाँ पे. तो जो मुझे लगता है कि ये मैंने कभी नहीं सुना है, वो मैं सीखता हूँ. देन फाइनली आई कम बैक टू माई स्टूडियो, आई क्रिएट समथिंग आउट ऑफ देयर. बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट शुड नॉट साउंड आउट ऑफ एवरीथिंग. yeah. कि हम लोग कुछ अलग करने के चक्कर में वी कांट रूइन समथिंग ना, Right. जो एक बहुत सिंपल चीज़ों से भी हो सकता है, राइट? तो एंड जब इट क्लिक्स ना, जो आपने पूछा है, वो समझ में आ जाते हो. बिकॉज बिफोर बिकमिंग ए कंपोजर आई एम ए लिसनर. Yeah. मैं सपोज इफ यू आर ए फिल्म मेकर, तो बिफोर बिकमिंग ए फिल्म मेकर यू आर एन ऑडियंस, राइट? तो एंड वी आर लकी कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग जानते हैं, देखते हैं या सीखते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं. ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग दिस 4x4 रूम के अंदर बैठ के वी आर डिसाइडिंग कि नहीं यार हम लोग जो बना रहे हैं वही कल्ट है, ऐसा तो नहीं. Yeah. तो इसीलिए जब कुछ क्लिक करता है या जब लगता है कि वो सबको समझ में आ जाता है, ओके दिस इज गोइंग टू वर्क. Okay. Yeah, sometimes it may not work also. Yeah. But at least that process is like nice. Okay. You do the background music, or you've done the background music. You've also done the composing for the songs. Yeah. For the show, right? Yeah. And very clearly, एक थोड़ा bifurcation है कि like you said, the panchayat theme है, the introspective moments have their own feel. Yeah. And there are songs like Paracetamol, right? Which are stage songs, which have to have that feel of the bethaks and the tamashas of the village. Yeah. So two songs in particular, Paracetamol and Hind Ke Sitare. Yeah. Because these are like really boisterous songs. Yeah. How did you go about getting that feel of the tamasha in a gaon? पैरासीटामोल एक्चुअली जब मुझे ब्रीफ दिया गया था, तो इट वाज सपोज टू बी जो हम लोग क्लीशेली बोलते हैं आइटम सॉन्ग, राइट? व्हिच आई एम नॉट वेरी, मैंने कभी किया नहीं था वैसा टाइप का गाना, एंड आई वाज ऑलवेज इनटू अदर सोलफुल और ये. पर मेरे लिए एक नया ये क्या बोलते हैं, अलग एक दुनिया था, अपॉर्चुनिटी था कि करे. एंड first thing I was always clear about the thing. I'm coming from Paracetamol only. Yeah. जैसे बीरी जलाई ले इज आइटम सॉन्ग, if I can say so, I will say so. But वो इतना सुन के अच्छा लगता है और उसमें इतना आपका क्या बोलते हैं, मीन्स the way it's written, the way it's composed, I can listen with my parents, I can listen with anyone. Yeah. जैसे लिखा है और जैसे गाया हुआ है, मुझे वो सुन के नहीं लगता है. तो मैं और अविनाश जूनो जिन्होंने लिखा है, तो वी आर वेरी क्लियर कि ऐसा ही कुछ गाना बनाते हैं जो हम लोग अनकंफर्टेबल ना हो सुन के, एंड जो साउंड के बारे में है ऑब्वियसली ऐसा हम लोग देखे हैं, एंड उसके ऊपर हम लोग नया क्या कर सकते हैं, वी ट्राइड इट. एंड वो लोगों ने सुना, लोगों को पसंद आया. अभी पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि बिकॉज पैरासीटामोल वर्ड था तो जैसे हम लोग ने भी बात किया कि 10 दिन तो वही लग गया कि पैरासीटामोल वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं. तो जूनू ने वो रिसर्च किया कि एक्चुअली पैरासीटामोल इज नॉट ए मेडिसिन, इज समथिंग एल्स, राइट? वो शायद क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ करेक्ट. वो तो एंड फाइनली इट रिलीज एंड पीपल लव्ड इट.
Yeah. हिन का सितारा का कहानी कुछ अलग था. Okay. That song was given to me by Chandan and Deepak sir. Okay. It was already written, Hmm. and Chandan, I think he is from that place, so he knows about it. He have heard that song many times in his life, and that's how he had incorporated it, because वो एक scene का part भी था. Correct. जैसे उस घोड़ा का नाम भी शायद सितारा है, right? So it's like a part of the narrative. Right. So they came to me with the song कि ये गाना है, हमको इसको चाहिए, उसको बनाना है. So my decision in that whole song was that कि let us keep as pure as possible. Okay. उस गाने पे we have not done any experimentation in terms of music or instrumentation. We call 5 great musicians from our industry: tabla, dholak, banjo, harmonium, percussion player. We book a studio and we record like it has been played in live. Got it. बैठक. Okay. We have not corrected any tempo. We have not corrected the scale. We have not corrected any tune. Right. और आसपास के 5-10 लौंडे को बुला लिया, भाई चिल्लाओ इसमें. और उन लोगों ने जो चिल्लाया, मैं हर चीज़ अगर मैं रिलीज कर दूँ, मैं शायद वो बहुत ऑफेंसिव भी हो सकता है. And finally the icing on the cake was Manoj Tiwari sir, of course. Yeah, No? yeah. That was also decision by TVF. Yeah. So I'm grateful that we got a chance to work with him. Yeah. वो इतना बढ़िया मीन्स कलाकार है और इतना अच्छे से गाता है. तो मेरे स्टूडियो से I was not there while the recording was happening, because it was happening in Delhi. Okay. तो मेरे स्टूडियो से गौरांगो was there. Okay. तो गौरांगो गया था वहाँ पे, and the whole recording process was very nice. बहुत प्यारा था. जो हालांकि अलग बात है कि मनोज तिवारी सर वहाँ पे गा रहे हैं एंड गौरांगो यहाँ से बोल रहे कि ऐसा है, और गौरांगो के पीछे 2 ऐसे बंदूक लेके बंदा खड़ा है, वो अलग बात है. उनका सिक्योरिटी है, security, वो nothing else. हाँ, तो वो अलग बात है. But And the yet way Gaurang, he made comfortable. Exactly. एंड इनके सितारा रिलीज होने के बाद भी द रेस्पॉन्स दैट वी गॉट, Yeah. एंड I'm thankful to Chandan and all that, and TVF also, because of them I'm getting to listen lots of music like this. Yeah. Yeah. And I'm glad that people are also loving it. And yeah. If you can just break down the process of composing background score versus a song, Yeah. because what I've heard is that the background score is often literally one of the very last things that happens before a show or a movie goes out, right? So do you get to see the scenes and then compose on them? It depends with the creator Okay. and the director. There are many directors जिनको मैं पहले ही बैकग्राउंड बना के दे देता हूँ, कुछ themes, Okay. कि ऐसा एक थीम है, because they love to design it. बहुत डायरेक्टर ऐसा भी है कि राइटिंग के टाइम पे they want some music. Okay. Yeah. कि ऐसा एक मैंने म्यूजिक बनाया, बोलते हैं कि ऐसा एक सीन है तो कुछ सोच के मुझे भेजना. एंड इफ दे लाइक इट, वो सुन के वो लोग लिखते हैं वो सीन, Got it. एंड दे प्ले इट व्हाइल द Scene has been सीन इज बीन शॉट, एंड वो ना एक्टर एक्ट्रेस को हेल्प भी करते हैं बहुत. एंड देयर आर अदर वे जो हम लोग का नॉर्मल वे है कि शूट करके लेके आया, फिर उसमें बैकग्राउंड करते हैं. Okay. Background music is difficult in many way, rather than composing a song. At least for me, this is my phone. Maybe for background only. So because background में 2-3 चीज होते हैं. Right. Background में आपको कुछ ऐसा बातें बोलना होता है जो आपका डायलॉग में नहीं होते. Right. राइट. Yeah. तो आपके मन के अंदर क्या है, जैसे आई वॉज डूइंग दिस सीरीज फॉर अनुराग बासु called Stories by Rabindranath Tagore. Right. Yeah, there is a story Chokher Bali, everyone knows. Yeah. तो वहाँ पे कैरेक्टर कुछ अलग है एंड उनके मन के अंदर कुछ अलग चल रहा है ना. तो इन पंचायत ऑल्सो, जैसे सीजन 4 में, हालांकि सीजन 4 बैकग्राउंड स्कोर इज डन बाय माय फ्रेंड ईशान दास. Right. तो सीजन 4 में जहाँ पे विनोद जाते हैं इन लोग के घर में खाना खाने के लिए, Yeah. जब नीना जी बोलते हैं तुम आप हम लोग का पार्टी ज्वाइन करें, Huh. इट्स वेरी ग्रेट थिंग Yeah. Yeah. ना. Yeah. इट्स Yeah. नॉट लाइक ए वेरी हीरोइक थिंग. They're poaching someone. Yeah. Yeah. तो उसका म्यूजिक क्या होएगा, तो वो सब ना आता है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक. Right. उस वहाँ पे अगर मैं
कभी अकेली है कभी साइड, वो तो पूरा विनोद एंड नीना जी का रिलेशन ही कुछ अलग हो जाएगा. yeah. सो एंड वहाँ पे अगर मैं पैरासीटामोल बजा दूं, हाँ. मैं बहुत खराब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जस्ट टू Yeah. मेक यू अंडरस्टैंड. बट हाँ, दैट्स द ब्यूटी और द टफ थिंग अबाउट डूइंग ए बैकग्राउंड स्कोर, बिकॉज आपका बैकग्राउंड ना ऑडियंस को गुमराह कर सकते हैं Right. ना. एंड उसके बाद भी कभी कभी और एक बैकग्राउंड का चैप्टर आ जाता है, जब आपका शूट खराब होता है तो लोग सोचते हैं कि बैकग्राउंड में हम लोग ठीक कर देंगे, तब ज्यादा टफ हो जाता है. Right. कि नहीं यार, मिस आप लोगों ने तो सुना ही हो कि पोस्ट पे संभाल लेंगे ना वो. Yes. वो बहुत ही टफ होता है. Yeah. एंड मैंने बहुत बार बोला कि अबाउट स्पेशली अबाउट पंचायत, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, पंचायत इज वन ऑफ द फ्यू सीरीज जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप अगर देखो तो आप बोर नहीं होगे. अगर आप वो क्रैक कर सकते हो एज ए क्रिएटर, तो उसके बाद जो भी म्यूजिक करे, वो अनुराग करे या XYZ करे, वो अच्छा ही होएगा. What's a good sign? What's the sign of a good background score? In the sense that हम जब 80s 90s की फिल्में देखती हैं, it's the background score is too manipulative. कि अगर हीरोइन कह रही है कि हाँ मेरे साथ क्या हो गया, there's a loud background score playing. Yeah. It's still happening. So it's still happening. So yeah. how does one keep it subtle at the same time, like you said, get it through to the audience of telling something that the character. It's again the director's call. Okay. Yeah, not director, the creator's call. Right. It can be the director, it can be the producer. Right. For me, my understanding about background score is different. आप अगर मुझे एकदम खुद को अपने हिसाब से कुछ करने के लिए दे, तो आई ऑलवेज फील कि अगर आपका बैकग्राउंड स्कोर नोटिस हो रहा है या ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, देन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. Okay. या मीन्स इट शुड बी फेल्ट. Got it. ना. तो अगर सुनाई दे रहा है कि ओके कि आप दुखी हो रहे, मैं उस दुख को और भी दुख करने के लिए मैं वायलिन बजा रहा हूँ, तो या कुछ अलग मैं आलाप कर रहा हूँ, तो वो अलग एक स्कूल है. एंड नथिंग इज रॉन्ग. Yeah. नथिंग इज रॉन्ग. एंड वही है, दैट्स द डिसीजन ऑफ द क्रिएटर. Okay. मैंने भी बहुत ऐसा कुछ किया है जहाँ पे हीरो निकल के आता है एकदम. इन पंचायत ओनली. Yeah. पंचायत जब बन रखा साथ ऐसा कि ना. Yeah. एंड जहाँ पे कुछ अलग सा अजीब सा बात बोल के जाता है, वहाँ पे हम लोग कुछ म्यूजिक ही नहीं दिया, बिकॉज द परफॉर्मेंस इज सो स्ट्रॉन्ग. Correct. Yeah. या बट फॉर मी अगेन, अगर लोगों को सिर्फ फीलिंग्स आ रहा है, मैं सुन के या हल्का सा, वो मालूम ही नहीं था इसमें बैकग्राउंड है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट. दैट विल बी द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर समवन लाइक मी. Okay. या And how do you compare that with songs? Are songs written beforehand and then a situation is found for them to be put in the show? with TVF is again different. Okay. Excluding paracetamol, I think all the songs they came with the situation and यहाँ पे आके दे दिया कि भाई ये सीन है, तुम बना के दे दो. Got it. It's tough, Uh-huh. but it's fun also. But most of the time क्या होता है, आप पहले ही आपको मालूम चलता है कि ऐसा एक सिचुएशन आने वाला है, गाना बना के दो. Got it. दैट इज द रेगुलर थिंग. या बट जैसे आई थिंक पैरासीटामोल वाज मेड बिफोर. Yeah. या खाली खाली सा वाज मेड आफ्टर. Okay. ऑल द सॉन्ग सावधानी हती आल्सो वी डिड बाद में आल्सो विद दिस जनरेटर सॉन्ग या तमाशा आल्सो. आसमां था शायद हम लोगों ने पहले कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Okay. या और कभी कभी क्या होता है शूट के बाद भी, बिकॉज पंचायत इज नॉट लाइक ए वेरी म्यूजिक सॉन्ग वाला Correct. Yeah. सीरीज, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे भी बहुत गाना कर लिया. ऐसा अभी मैं अगर देखता हूँ तो उसमें भी है 10-12 गाना शायद हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी. प्यार बरसता है या पासा फेक या हिया थो या व्हाटएवर इट इज. या मींस एंड सबसे अच्छा लगता है कि इतना रेस्ट्रिक्शन में भी अगर आपका एक गाना बनता है, बनने के बाद जब लोगों को पसंद आता है, वो सबसे खूबसूरत चीज होता है. मींस बिकॉज यू नो फॉर नॉट ओनली फॉर कंपोजर, फॉर लिरिसिस्ट आल्सो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. एंड बट एक चीज भी है, वो बनाने के बाद भी वी हैव द लिबर्टी कि थोड़ा एडिट चेंज हो या कुछ हो.
एंड हम लोग एक दूसरे को जानते भी, वी नो द एडिटर, वी नो द ये, नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है, वी ओनली नो द पर्सन हु इज कमिंग टू माय स्टूडियो ना, वी डोंट नो हु इज द डीओपी, वी डोंट नो कौन क्या कर रहा है. तो यहाँ पे एवरीवन नोज एवरीवन पंचायत में. इन लास्ट सीजन 4 आई हैव नॉट बीन टू द मिक्स ऑल्सो, जो फिल्म मिक्स होता है सुदीप दत्ता के, वहाँ पे मैंने गया ही नहीं. मीन्स इतना हम लोग का अंडरस्टैंडिंग हो गया. और ऐसा कभी मेरा होता नहीं कि मैं मिक्स में नहीं जाता. बाद एक भरोसा हो जाता है कि ये मैंने अपना काम किया, आप इनको और भी खूबसूरत करो. एंड व्हेन आई वेंट एंड सॉ इन द प्रीमियर, इट वाज लाइक अमेजिंग, इट्स लाइक मैजिक. You spoke about Juno. He's been a constant collaborator with you for the lyrics. Yeah. How is it working with him? How long have you known him? Tell us something about that. I think Gaurav Rungta, who introduced me to Juno. Juno is one of the most special person I have met. I met him as a lyricist. Now he is like part of my family. Okay. He's a very pure soul. He is very fast also in writing lyrics, and at the same time he's very sensible also. Means to crack something for series called Panchayat, it's not easy. He has written Khali Khali Sa. Yeah. He has written Paracetamol. Yeah. Now he has written this. मौसी को सी टाइप का केबल मांग रहे हैं, ऑल generator. He's writing, so he's like 360 degree. And let me tell you, he's the person who have written the lyrics for Sapphire for Arijit Singh now. Oh, okay. Yeah, so and he's very silent and shy, and he will never boasting, and he has written for Martin Garrix song जो अरिजीत के साथ किया है. तो मैं उनको बताता हूँ, मैं कभी रोमी के साथ मैं काम करता हूँ तभी मैं खुश हो जाता हूँ. रोमी तो मेरा दोस्त है, बट फिर भी रोमी इज सच ए बिग नेम इन द इंडस्ट्री. तुम एड शीरन के साथ काम करके भी, so he is that person. Got it. He is like a pure Sufi kind of a person, and जो उन्होंने लिखा है, I really request people, all the audience, to go and check all his writings. Okay. कि कभी कभी एक चीज ऐसा बोल के चला जाता है ना. मीन्स इन आसमारू था, it was very tough for all of us because Swanand Kirkire sir, Swanand sir is himself an amazing lyricist. Right, of course. He's like one of the most legendary lyricists that we have. Yeah. उनके लिए lyrics लिखना is like a tough thing. Of course. तो अंतरा में जूनू ने एक तो लाइन लिखा था कि तूफान तो आकर चल दिए सिहरन बाकी है तो मन में रह जाती है. वो लाइन जब मैंने पहली बार के लिए सुना था, आई जस्ट क्राइड. मैंने बोला तुम कैसे लिख सकते हो ये अपार्ट फ्रॉम पंचायत. Yeah, of course. ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत तूफान आ सकते हैं, रह जाता है एक सिहरन. तो और सेम बंदा आके आपका पैरासिटामोल भी लिख देगा ना. Yeah. Has there ever been feedback from you when you get the lyrics that this word is too hard for me to fit in somewhere or to pronounce? Please change it. ये तो होता ही रहता है. Okay. ये कभी ना कभी होता रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है ना, इन पंचायत मोस्ट ऑफ द टाइम अभी द लिरिक्स हैज बीन रिटन, मींस पहले लिख के देते थे. हाँ. बिकॉज जूनो भी इतना वो है ना, वो ही इज क्लोज टू एवरीवन. Yeah. जैसे खाली खाली सा, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि बैकग्राउंड करे कि गाना करे, बट जूनू ने वो लिख के ऑलरेडी दीपक सर को सुना दिया कि सर मेरा ना माइंड में ऐसा है. दीपक सर लव्ड इट, एंड दीपक सर सेंड मी द लिरिक्स कि जूनू ने ऑलरेडी लिरिक्स लिख दिया, तो कंपोज कर. तो एंड व्हेन इट्स राइट, जैसे पहला है तो पतझर चले आए, वो पतझर वर्ड सुन के लगता है इट्स नॉट वेरी म्यूजिकल वर्ड, पर वो मीनिंग इतना अच्छा है. Yeah. तो यूज्ड इट एंड या. So last thing, if you can sum up your experience working with TVF, because in many questions you said that they don't really follow a typical process. Yeah. Things are different every time. Yeah. But just your experience of working with Team TVF. एक्चुअली TVF के साथ ना, मीन्स आई थिंक आई एम अमंग वेरी फॉर्चुनेट पीपल हु आर वर्किंग विद TVF. Yeah. एंड आई थिंक जब TVF का जर्नी था फ्रॉम यूट्यूब तो OTT ना, Yeah. तो देन ओनली
उसी दौरान ही आसपास दौरान ही मेरा एंट्री हुआ TVF के साथ एंड आई मेट द बेस्ट ऑफ द पीपल. बट TVF एक है, सारे लोग, मैंने बहुत इंटरव्यू में बोला है कि दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी सेंसिबल पीपल, बट डे में लाइक वो आपको बिगाड़ भी सकते हैं बिकॉज द वे TVF फंक्शन इट डजंट हैपन इन द इंडस्ट्री. कभी नहीं होता है. मीन्स बिकॉज मैं सीरीज का पूरा ये मेरा सिलसिला ऑलमोस्ट शुरू हुआ था TVF के साथ ही ऑलमोस्ट. तो जैसे मैंने बोला कि एक डायरेक्टर आते हैं, वो आके बोलते कि इट्स वर्किंग, चाहे वो पलाश वसवानी हो या अमृत राज गुप्ता हो या जो भी हो, या दीपक सर हो, इस बार अक्षय था, तो वो आके आपको बताता है ये दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, एंड ही लाइक्स इट, यू सेंड द स्टैम्प्स एंड प्रोजेक्ट इज ओवर. एंड with other productions क्या होता है, they are like 5 different people. कि पहले डायरेक्टर सुनेगा, उसके बाद probably the producer will hear it, and उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म में अगर जा रहा है, there will be like people from OTT, they will be listening to it, yeah, they will be giving the feedback. I'm not saying it's wrong, but वो अलग एक स्कूल है. कभी कभी क्या होता है, उस प्रोसेस से भी और भी आपका बेहतर हो जाता है. यहाँ पे 2 लोग आपका बैठ के हम लोग कुछ बना रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट में आपका 5 लोग मिलके कुछ फीडबैक देके एक बना रहे हैं. तो दोनों अलग अलग स्कूल है. तो इसीलिए बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दिस होल थिंग विद TVF, मुझे लगता था कि पूरा दुनिया ही ऐसा है. डायरेक्टर ने आके देख लिया, ये तो हो गया. बट या ग्रेट पीपल, वेरी सपोर्टिव, इट फील्स लाइक ए फैमिली, एंड बढ़िया है बस. Cool. Thank you so much, Anurag, for all the music. And I've seen Panchayat music being played in birthday parties, weddings, just housewarming parties everywhere. Yes, you are telling only the good. Good situation, यार. Means you have not. You should watch the bizarre moment जहाँ पे लोग पंचायत music बजाते हैं. I remember many things. I remember this, and every time people tag me, यार. Means I remember this theater, some cinema theater. Some person was very angry with the theater का जो owner. No, not owner. जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, I think the manager. Okay. And he was, I think कुछ तो बोल ही रहा था गुस्से में, and suddenly the पंचायत title, ding 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 ding, and the phone rings. Yeah, so ये सब, and ringtones, caller tunes, it's and everywhere. पंचायत title track has been like used in all the wrong things now. Means कहीं पे कुछ भी हो रहा है यार. Means yeah, it's a very sweet music. It is. Please use it in sweet things, guys. Sweet things, yeah. Means there are lots of sweet things maybe use किया है. But recently means not only खाली सा कहीं पे इंडिया कहीं पे क्रिकेट मैच में हर खाली सा, why? So yeah, use it, but use it wisely, guys. And stop tagging Anurag in those reels. नहीं मजाक कर रहा हूँ. Please use it wherever you are. अभी it's yours now. Thank you so much, Anurag. Thank you.